Hello guys, welcome back to my YouTube channel Happy Learnings. And in last video I have explained you what is meant by chemical reaction. In that we have studied when one substance get converted into another different substance due to some chemical interactions, it is known as a chemical reaction, in which the starting material is a reactant, and with the chemical interactions in the nature it get converted into the product. So this is what a chemical reaction means. And now in this video I am going to explain you what is meant by chemical equation. So basically what is meant by chemical equation? Symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and chemical formulas is basically known as chemical equation. I am repeating myself. Symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and chemical formulas is known as chemical equation. Now let us try to write down the chemical equation of magnesium ribbon burnt and gets converted into magnesium ऑक्साइड. सपोज हमारे पास ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है, हम इसको इजीली केमिकल इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं? सी, राइटिंग दिस मच इतना बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है. अगर हमें फास्ट में लिखना है तो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. देखो, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? Mg. Mg बर्न, देखो यहां पे बर्न दिया हुआ है. बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है? बर्निंग इज ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जहां जहां पे बर्निंग होगी, देखो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है. विदाउट ऑक्सीजन अ सब्सटेंस कैन नॉट बी बर्न. अगर यहाँ पे सिर्फ बर्निंग दिया हुआ है, वी हैव टू अज्यूम क्या? कंपल्सरी वहां पे ऑक्सीजन होगा. तो व्हाट हमें क्या दिया हुआ है? मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड and converted into magnesium oxide. Magnesium, symbolic representation of magnesium is Mg. Symbolic representation of oxygen is O. Oxygen का symbolic representation क्या है? O. But whenever we are writing oxygen in chemical equation, it is always present in the form of dioxygen. Oxygen nature में हमेशा in the form of dioxygen, 2 atoms of oxygen present होते हैं. And it is converted into what? Magnesium oxide, MgO. This is what? Magnesium oxide. मेरे को बताओ यहाँ पे what is reactant and what is product? The substance which is getting reacted. देखो स्टार्टिंग में हमें ये मालूम नहीं था कि हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, तो हमें क्या मालूम था? सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये दोनों रिएक्ट होंगे, है कि नहीं? ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे. द सब्सटेंस विच आर गेटिंग रिएक्टेड आर नोन एज रिएक्टेंट, एंड at the end what we are getting is known as product, है कि नहीं? अब मेरे को बताओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू सम केमिकल इंटरैक्शंस इन द नेचर. केमिकल इंटरैक्शंस, तो हमें क्या मिल गया है? हमें केमिकल रिएक्शन मिल गया है. वी हैव गॉट अ केमिकल रिएक्शन. what can you see a difference in this reaction? Yes. What difference can you see? Here is one atom of magnesium,
here is one atom of magnesium, but here there are two atoms of oxygen, and this side only it is one atom of magnesium. See, what are the elements present in this chemical reaction? Tell me, what are the elements? Here the elements are only two, magnesium and oxygen. See, reactant is always present on what? Left hand side. Reactant is always present on the left hand side, and the products are always present on what? Right hand side. Products are always present on the right hand side. Now see, tell me, magnesium on left hand side are how many? Only one atom of magnesium is present on the left hand side. And tell me, how many atoms of oxygen? There are two atoms of oxygen present on the left hand side. Now tell me, what about right hand side? Magnesium, how many? Magnesium, one magnesium. And how many oxygen? One atom of magnesium, oxygen is present on the right hand side. Yes? Now see, magnesium, left hand side one atom, right hand side one atom. It is okay. But what about oxygen? There is a difference. Now what we have to do for an ideal chemical equation, we need to balance this reaction. We need to balance. Left hand side should be always equal to the right hand side. Left hand side should be always equal to the right hand side. So hence here is the difference. यहाँ पे difference दिख रहा है, हमें इसको balance करना चाहिए, because in nature everything is present in the form of balance form. तो देखो, मेरे पास one magnesium है लेफ्ट हैंड साइड में और वन मैग्नीशियम है राइट हैंड साइड में. वी विल जस्ट नेग्लेक्ट दिस मैग्नीशियम एंड वी विल फोकस ऑन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक. मेरे को बताओ, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटू टू करना पड़ेगा. इंटू टू करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे इंटू टू लिख दूं. शुड आई राइट हियर इंटू टू, ताकि ऑक्सीजन इक्वल हो जाए लेफ्ट राइट हैंड साइड के. देखो, अगर मैं इंटू टू करती हूं तो यहाँ पे फिर से डिफरेंस आ रहा है. क्या डिफरेंस आ रहा है? फिर से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेट करने के बाद फिर से देखो, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे दो हो गया, यहाँ पे दो हो गया. पर यहाँ पे फिर से चेंज क्या है? यहाँ पे दो मैग्नीशियम हो गया और यहाँ पे एक मैग्नीशियम हो गया. सो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई मैग्नीशियम हियर ऑल्सो विथ 2. यहाँ पे क्या करूंगी? आई विल मल्टीप्लाई हियर विथ अगेन विथ 2. तो नाउ सी व्हाट माय फाइनल chemical equation becomes. My final chemical equations become 2Mg plus O2. It will give 2MgO. It will become what now? 2MgO. अब देखो, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे. नाउ दिस रिएक्शन इज फुली बैलेंस्ड. और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो चलो, लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल एंड ट्राई टू स्टडी कि हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है एंड हाउ टू बैलेंस इट. वी विल टेक दिस फ्रॉम नेचर, बिकॉज एट लास्ट नेचर ही हमें सिखाता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड फॉर्म, है कि नहीं? तो लेट अस टेक फ्रॉम आवर डेली एग्जाम्पल. वी ऑल सी कि हमारा आयरन गेट या वट एवर आयरन की जो भी चीज है, इट इजीली गेट कोरोडेड, है कि नहीं? कोरोजन लग जाता है. कोरोजन मीन्स सड़ जाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग? सी, आयरन symbolic representation of iron is in the form of Fe. अब कोरोजन कैसे होता है? व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, है कि नहीं? आयरन व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4. Fe3O4 और बच क्या गया लास्ट में अपने पास? हाइड्रोजन.
तो देखो अपने पास फिर से इक्वेशन है, आयरन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयरन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. सो अगेन reactant, what is our reactant? Iron plus water is our reactant and what is our product? Iron oxide and hydrogen gas is our product. ठीक है, तो we will again go step by step. We will write here this is our reactant, ये अपना reactant है, ये अपना product है, product corroded है, that is corroded product iron oxide. ठीक है, तो we will again left hand side, right hand side. बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट्स है? वी हैव आयरन, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन. यस और नो? वी हैव आयरन, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन. आयरन मेरे को बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कितना आयरन है? वी हैव 1 atom ऑफ आयरन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड हाउ मेनी आयरन वी हैव? वी हैव 3 आयरन ऑन द राइट हैंड साइड. अगेन लेट्स गो विद द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितना है अपने पास? हाइड्रोजन है 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 है. हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस्ड फॉर्म में है. लेट अस गो टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन नाउ. ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 1 atom ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ पे ओ भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है. नाउ हमें अब क्या बैलेंस करना है? फोकस हमेशा लगाए रखो जिंदगी में. सो वी हैव आयरन एंड ऑक्सीजन, वी हैव टू फोकस ऑन आयरन ऑन ऑक्सीजन. देखो ऐसे क्या मल्टीप्लाई करने से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड विथ 3 ताकि वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए. अगर कुछ चीज कम हो रही है तो उसमें ऐड किया जाता है. सब्सट्रैक्ट किया जाता है क्या लाइफ में से? नहीं, ऐड होती हैं चीजें लाइफ में. सब्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है. ठीक है, हो जाता है पर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है. तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे 3 एटम्स ऑफ आयरन ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे अब दोनों इक्वल है कि नहीं? राइट हैंड साइड इज नाउ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट हाइड्रोजन 2 बराबर है. नाउ वी विल गो टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे 1 है. व्हाट वी विल डू? अगेन वी विल मल्टीप्लाई हियर विथ 4 so that our left hand side is always equal to our right hand side. ऑक्सीजन 4, तो चलो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4. अभी देखो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वी हैव गॉट अ चेंज कहाँ पे? वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है. हाइड्रोजन कितना बन रहा है अपना? 8. क्या बन रहा है? 3 Fe plus 4 H2O will give Fe3O4 plus H2. So can I say now कि मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है? yes और no? 3 देखो 3Fe यहाँ पे, 3Fe यहाँ पे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन यहाँ पे. ओ शिट सॉरी, 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 हाइड्रोजन 4 2 जा 8 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे. सो अब मेरी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं? सो दिस इज हाउ वी बैलेंस्ड आवर केमिकल इक्वेशन. वेरी लास्ट स्टेज फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, हमें इसके ये कौन से एलिमेंटल फॉर्म में है हमें ये भी लिखना चाहिए. सी आयरन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन विच फॉर्म? सॉलिड फॉर्म, तो हम यहाँ पे S लिखेंगे. वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैसियस, तो G लिखेंगे. यहाँ पे कोरोजन इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस. सो दिस इज माई final chemical equation. This is my what? Final chemical equation. Thank you guys. I hope you understand. If any doubts you can comment down and we will see in our next class.